you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is working with WordPad. तो WordPad पे किस तरीके से आप कमांड देते हुए कोई भी काम करते हैं आज हम वो सीखेंगे. In this chapter, we will learn opening WordPad, WordPad interface, components of WordPad, entering text, editing text, formatting text, saving our file, closing WordPad. WordPad is a basic word processing program that we can use to create and edit documents. It has been with the Windows family of operating systems for a long time and is back again in Windows 7 with a brand new interface. WordPad allows simple formatting like change fonts, character level formatting, change margins, insert bullets, charts, graphic and sound files, etc. तो आपके जो WordPad होता है ये आपका बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप किसी भी फाइल की कर सकते हैं. ये दोबारा से आपकी पूरी विंडोज़ फैमिली के साथ ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन अभी विंडोज़ 7 के साथ एक और भी ज़्यादा रिफाइंड वर्जन में आया है जिसमें आप ग्राफिक्स एंटर कर सकते हैं, साउंड्स को भी आप ऐड कर सकते हैं वर्डपैड को यूज़ करते हुए, और तो और जितनी भी आपकी वीडियोज़ आती हैं इंटरनेट पर होती हैं वो सारी क्लिपिंग्स को भी आप वर्डपैड में अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं. Know it. WordPad was introduced in Windows 95, replacing Microsoft Write. तो आपका जो WordPad है सबसे पहले Windows 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में इसको WordWrite ने रिप्लेस कर दिया था. Opening WordPad. Follow the given steps to open WordPad on Windows 7. Step 1, click on Start button. Step 2, select all programs. Step 3, click on Accessories. Step 4, click on WordPad. The WordPad window will appear on the screen as shown in figure. There is also an alternate way to start WordPad by searching it on Start menu. To do so, firstly click on Start button and then type WordPad in search bar, which is present at the bottom of the Start menu. As we can see, the program WordPad has listed itself at the top of the Start menu along with any files with names that match the search criteria. Now start WordPad by double clicking on the program name. तो अगर आपको WordPad को ओपन करना है सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन को क्लिक करना है. स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है. ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आपके सामने एक एक्सेसरीज नाम का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है. एक्सेसरीज पे जाने के बाद आपको WordPad पे क्लिक करना है और आपका WordPad प्रोग्राम ऑन हो जाएगा. इसके अलावा जो आपके स्टार्ट बटन पे एक सर्च ऑप्शन होता है उस पर भी आप WordPad को टाइप करके WordPad जैसे ही आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा उस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने WordPad का विंडो ओपन हो जाएगा. WordPad interface. We have briefly introduced the interface elements earlier. So let's recap the major elements. The blue tab is similar in nature to the file menu used by hundreds of other programs. This menu is properly known as the backstage menu because you can create a new file, save your existing file, print और exit the program. जो आपका blue tab होता है ये किसी भी फाइल मेन्यू के जैसा ही है, पुराना है, जिसमें आप किसी भी फाइल को व्यू कर सकते हैं, किसी नई फाइल को आप सेव कर सकते हैं या आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है आप उसको भी देख सकते हैं. Components of WordPad. Title bar. It is a horizontal bar present on top of the WordPad window. It shows the name of the document which is opened currently. It also contains 3 control buttons: minimize, maximize and close. Menu bar. It is located below the title bar. It contains various options used in WordPad. Each option contains various commands. Quick access toolbar. This is located above the ribbon. This toolbar provides access to frequently used commands and an option to customize this toolbar. Ribbon. The ribbon is a user interface element created by Microsoft. It is a part of the Microsoft Office Fluent interface and combines the menu bar and toolbar into a single floating pane. It is located at the top of the screen. The purpose of the ribbon is to provide quick access to commonly used tasks. Ruler, it helps to check the layout and placement of the text in the document. Document area, it is the place where we can type and apply our formatting. Cursor, it is a small blinking line on the screen. It signifies where the next character will be displayed on the screen. It keeps on moving towards a right side when we write text.
Status bar, it is present on the bottom of the window. It displays the command which is selected from the menu bar. आपके जो वर्ड पैड होते हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले आपका टाइटल बार आता है. ये टाइटल बार आपके पूरे विंडो के सबसे टॉप में होता है और आपके विंडो का या आपके वर्ड पैड का जो भी टाइटल होता है यहीं पर ये प्रेजेंट होता है. इसके अलावा इसके टॉप राइट कॉर्नर पे 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं, मिनिमाइज के, मैक्सिमाइज के और क्लोज करने के. ठीक टाइटल बार के नीचे आपका आ जाता है मेन्यू बार. मेन्यू बार में आपके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनको वर्ड पैड पे आप काम करते हुए उन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं. देन कम्स योर क्विक एक्सेस टूल बार. ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, किसी भी चीज को अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमाइज करने का टूल बार होता है, सेव करने का टूल बार होता है, ये सारी चीजें आपको क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट होती हैं. देन कम्स योर रिबन. आपके रिबन में आपकी अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं, आपके अलग अलग टाइप के कमांड बटन्स होते हैं जिनको आप सिलेक्ट करके आपके वर्ड पैड पे किसी भी चीज को आप टाइप या फिर इंसर्ट कर सकते हैं. ये सारी चीजें आपकी रिबन वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं. देन कम्स योर रूलर. आपका जो टेक्स्ट का प्लेसमेंट है, कौन सा टेक्स्ट कौन सी लाइन में होगा, स्ट्रेट है या नहीं है, वो आपका रूलर की मदद से डिसाइड होता है और कंट्रोल होता है. देन कम्स योर डॉक्यूमेंट एरिया. ये आपका वो एरिया होता है जहां पे आप कोई भी चीज टाइप कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं या फिर फॉर्मेटिंग आपकी चल रही होती है. देन कम्स योर कर्सर. ये जो कर्सर होता है ये स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है आपके स्क्रीन पे. जहां पर भी आपका टेक्स्ट होता है ये कर्सर हल्का हल्का वहीं पे ब्लिंक कर रहा होता है जहां पे आपका नेक्स्ट लेटर टाइप होना होता है. देन कम्स योर स्टेटस बार. जो आपका स्टेटस बार होता है, जो भी आप कर रहे हैं, आपके वर्ड पैड पे कर रहे हैं, क्या स्टेटस करंटली आपकी प्रोग्रामिंग का चल रहा है, स्टेटस बार में आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं. नो इट. प्रेस शिफ्ट की एंड 7, 4 कीज टुगेदर टू टाइप एंड डॉलर. तो अगर आपको 7 या फिर डॉलर को करना है तो आपको शिफ्ट की के साथ आपको 7 या फिर 4 को प्रेस कर देना है. तो आपका एंड और डॉलर रिस्पेक्टिवली प्रेस हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. एंटरिंग टेक्स्ट. When we are ready to get started, type in the document area of WordPad. A cursor indicates where the next text that we type will appear. We do not need to press the enter key when we reach the right margin. The word processor will move to the next line automatically. This is called a soft return. The only time we need to press the enter key is to create a new paragraph. This is called a hard turn. तो आपके जो टेक्स्ट जब आप लिख रहे होते हैं, अगर आपका एक सीक्वेंस में कोई टेक्स्ट चल रहा है तो जैसे ही आपका बिल्कुल मार्जिन के राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे कोई भी आपका लेटर या वर्ड पहुंच जाता है तो आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट लाइन पे जंप करने के लिए. ऑटोमेटिकली जो आपका कर्सर होता है वो नीचे की तरफ अगली लाइन पे आ जाता है. इसे कहते हैं सॉफ्ट रिटर्न. बट अगर आपको पैराग्राफ्स अगर चेंज करने हैं, बीच में आपकी कोई लाइन है, आपको सडनली आपको नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है, तो वहां पर आप एंटर की का यूज करते हैं और इस टाइप के रिटर्न को बोला जाता है हार्ड रिटर्न. Editing text. If we make a mistake while entering the text in our document, we can use the backspace key to erase the mistake and then fix it. We can also put the text cursor on the text we want to edit so that we can fix the mistake. फिर आपका आ जाता है editing text. आपने कोई text लिखा है, आपको सही नहीं लग रहा है, कुछ करेक्शन अगर आपको करनी है तो डायरेक्टली आप अपने कर्सर को उस वर्ड या उस लेटर के पास लेकर जा सकते हैं. अपने हिसाब से आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं. Formatting text. Formatting refers to how the text in document looks and how it is arranged. We can format text by making the text bold, italicized, underlined in different fonts and font sizes. We can make our text appear in any color we want. We can also change the alignment of text in the document. फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, इसमें आपने जो भी आपकी हेडिंग दी होती है, कुछ आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप अपने लेटर्स के फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं. आपकी अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग आती है, कैलीग्राफी आती है जिसमें आप अपने लेटर्स का जो फॉन्ट का स्टाइल होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं. कलर भी जो आपका होता है वो भी चेंज कर सकते हैं. आपकी जो हेडिंग होती है उसमें अंडरलाइन आप कर सकते हैं. ओवरऑल आपके टेक्स्ट को फैसिनेटिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का यूज करते हैं. Know it.
If we make a mistake while editing the text, we can always undo it by pressing Ctrl+Z. तो अगर कोई गलती करते करते आपको ऐसा लग रहा है कुछ आप कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, आपसे कुछ एरर हो गया है, आपको वो पूरा का पूरा स्टेप ही अंडू करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको Ctrl+Z दबा देना है. To change the font style or font size, follow the given steps. Step 1, select the text whose formatting we want to change. Step 2, in the font group ribbon, select the font. Step 3, in the size box, type or select the font size. तो अगर आपको font का स्टाइल चेंज करना है, font का साइज चेंज करना है, तो सबसे पहले आप जो भी आपको टेक्स्ट आपको फॉर्मेट करना है, जिसका फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे. आफ्टर दैट आपके जो रिबन वाला सेक्शन है उसमें आपके फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉन्ट पे सिलेक्ट करना है. आफ्टर दैट आपका साइज बॉक्स आएगा या फिर आपका आएगा टाइप और सिलेक्ट द फॉन्ट साइज. वहां पे आपका जो भी फॉन्ट साइज है आपको वो टाइप कर देना है या फिर सिलेक्ट कर लेना है, आपका फॉन्ट का साइज चेंज हो जाएगा. To change the color, follow the given steps to change the color. Step 1, select the text whose color we want to change. Step 2, in the font group, click on text color. Step 3, under color, click the color that we want to use. अब आपको अगर किसी भी फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले आप वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है. आफ्टर दैट आपके फॉन्ट ग्रुप का जो टेक्स्ट कलर वाला डिपार्टमेंट होता है वहां पर जाकर आपको कलर चूज कर लेना है. जैसे ही आप उस कलर वाले मेन्यू के अंदर कलर को चूज करेंगे आपका जितना भी टेक्स्ट है वो उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. To change the alignment, WordPad allows us to align the text in 4 different ways. Left, right, center and justify. Align text left, Ctrl+L. In this alignment, WordPad aligns all the text to the left. Align text center, Ctrl+E. In this alignment, WordPad aligns all the text to the middle. Align text right, Ctrl+R. In this alignment, WordPad aligns all the text to the right. Aligned text justify, Ctrl+J. In this alignment, WordPad aligns the text to both left and right margins, adjusting the extra space between the words as necessary. आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, यानी कि आपको टेक्स्ट कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, मिडल में चाहिए, कितना स्पेस आपको दोनों साइड्स पे चाहिए, उसके लिए आपके अलग अलग कीज का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि आपको अगर आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो आप Ctrl+L को प्रेस करेंगे तो आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट विल बी अलाइन टू द लेफ्ट साइड. सिंपली अगर आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए, सेंटर पे करने के लिए Ctrl+E दबा देंगे तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर पे आके अलाइन हो जाएगा. देन कम्स योर राइट, Ctrl+R को दबाएंगे, सारा का सारा टेक्स्ट राइट पे चला जाएगा. फिर आपका आता है Ctrl+J. इसमें आपका अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल मार्जिन स्पेस आपके छूट जाते हैं और आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर पे आके स्टैंड हो जाता है. Follow the given steps to change the alignment. Step 1, select the paragraph whose alignment we want to change. Step 2, click on the alignment we want in the paragraph group of the home tab. तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, सबसे पहले आप पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपको अलाइनमेंट चेंज करना है. आफ्टर दैट आपके होम टैब में जो पैराग्राफ ग्रुप है उस पर आपको अलाइनमेंट पे क्लिक कर लेना है. आपका जो पूरा का पूरा टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा. Know it. We can click the alignment command first and then type the text or select the block of text and then choose our alignment. तो आपका पहले आप alignment को select कर सकते हैं, इस ऑप्शन को कमांड दे सकते हैं, उसके बाद आप टाइप कर लीजिएगा तो भी आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा. सिंपली अगर आपने पहले भी लिख दिया है कोई भी टेक्स्ट और उसके बाद आप कमांड दे रहे हैं तो उसके बाद भी आपका अलाइनमेंट उसी तरीके से होगा. Let's do something. Karthik has typed a paragraph using WordPad. He wants to do the following tasks in the WordPad. Suggest ways to do it. Number 1, insert a word in a sentence. Second, delete a line from the paragraph. Number 3, save his work. Number 4, print his document. Number 5, close WordPad. तो कार्तिक को अलग अलग टाइप की चीजें करनी है, कहीं पे उसको वर्ड ऐड करना है, कहीं पे फॉन्ट साइज चेंज करना है, कहीं पे अपना टेक्स्ट को सेव करना है. तो आपको इसके आंसर्स लिखने हैं कि वो सारी की सारी फंक्शंस को किस तरीके से कमांड करेगा.
saving a file. If we open WordPad and begin typing in a new document, we will likely want to save the file to use it later. Follow the given steps to save the document. Step 1. Click Save on the File menu. Step 2. Type a name to document in File Name text box. Step 3. Click on Save button. The document file will be saved successfully. तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप वर्डपैड पे नए तरीके से शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू सेव इट सो दैट आप उसको फ्यूचर पर्पसेस के लिए यूज कर पाएं. इसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है सेव पे आपके फाइल मेन्यू में जाके. जैसे ही आप फाइल मेन्यू में सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फाइल नेम करके एक डॉक्यूमेंट अप्लाई, एक डायलॉग बॉक्स टाइप का अपीयर हो जाएगा. वहां पे आपको फाइल नेम लिखना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है. आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट. स्टेप 1. क्लिक print on the file menu. Step 2. Use the number of copies to print. Step 3. Click on print button. The document will be printed. अब इसी डॉक्यूमेंट को अगर आपका प्रिंट आउट आपको निकालना है, हार्ड कॉपी अगर आपको निकालनी है, तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे आपको जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी भी चाहिए आपको उस पर उतना टाइप कर देना है. आफ्टर दैट आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है. आपके जितनी भी कॉपीज आपने लिखी हुई है, आपका जो डॉक्यूमेंट आपने कमांड दिया है वो आपका हार्ड कॉपी में प्रिंट होके बाहर निकल जाएगा. Closing WordPad. When we have finished using WordPad, click the close button on the upper right hand corner of the screen. We can also click exit on the file menu to close the प्रोग्राम. तो अगर आपको इस वर्डपैड को क्लोज करना है, आपका काम खत्म हो चुका है, तो सिंपली जो आपके टॉप 3 राइट साइड पे आपके अलग अलग कंट्रोल बटन्स होते हैं उस पर आपको क्लोज पे चले जाना है. आपका वर्डपैड का प्रोग्राम बंद हो जाएगा. या फिर सिंपली आपका एग्जिट बटन होता है, एग्जिट पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये विंडो शट डाउन हो जाएगा. Know it. The shortcut key Ctrl+S is also used to save the document file. अगर आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, शॉर्टकट तरीके से आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो सिंपली आपको Ctrl+S इन दोनों कीज को कॉम्बिनेशन में यूज करना है. इसके बाद आप अपनी फाइल को शॉर्टकट तरीके से सेव कर सकते हैं. To revise, WordPad is a basic word processing program that we can use to create and edit documents. Opening WordPad by clicking Start, then All Programs, then Accessories, and then WordPad. In WordPad, we can format text by making the text bold, italicized, underlined, at different fonts and font sizes. WordPad allows us to align the text in 4 different ways: left, right, center, and justify. When saving a file for the first time, we need to give it a name. तो WordPad जो होता है ये आपका अलग टाइप का प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं किसी भी फाइल को, ऑडियो एडिट कर सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं. इसके अलावा अलग अलग टाइप के आप इटैलिसाइज्ड, अंडरलाइंड, आपके फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपका जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सेंटर पे, जस्टिफाई करके. और इसके अलावा अगर कोई भी फाइल आप पहली बार आपने कोई फाइल बनाई है, डॉक्यूमेंट करी है, उसको अगर आपको सेव करना है तो फर्स्ट टाइम पे आपको उसको नेमिंग देनी पड़ती है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है.